हाँ मिताली, वेरी मिताली ज्वाइन हुई क्या? Yes, ma'am. अभी मिताली, Yes, ma'am. we can start our session. Okay, you can start now. Okay, ma'am. Just 1 minute. Hold on. What? Okay. Just I'll give you a call. Okay, just wait 1 minute. Okay? Yes, ma'am. Yes. Let's candidate. Let's. Okay. Ma'am, actually we are waiting for principal, ma'am. That's why it will take 1 or 2 minutes. Okay. Swati, ma'am, we are waiting for principal, ma'am. She's coming within 1 or 2 minutes. Okay. That's why we are waiting, ma'am. Okay. It will take 1 or 2 minutes, ma'am. Sorry, ma'am. Sorry for the delay, ma'am. माझं कन्सिडर करते ना जे मैम हो गए? पटेल मैम हो गए? मैम स्टार्ट करो। एटलीस्ट कॉलेज का चालू करो। Okay. Mitali, you can start. Okay. Mitali, you can start the session. Actually, ma'am, it will take some time to join her. Okay, but you can continue the session. Mitali. Mitali, are you Okay, there? ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Yes.
Good morning, everyone. I, Ms. Mitali Ingle from SYBDA, welcome you all at Sahyo College of Management Studies, Thane. Today, we all are here for this webinar, Women Hygiene to Empowerment. This webinar will surely help us to abolish the culture of silence and taboos around menstruation. Mitali, is there any problem? There is lot of disturbance actually. Yeah, can you just mute them now? All the participants except Mitali. She should be unmute. Okay, Mitali, you can carry on. For this event, we have with us eminent personality, Mrs. Swati Bedekar ma'am, a famous sad woman who inspires millions and help them to make change in their lives. Now, I would welcome Mrs. Swati Bedekar ma'am. Yes, Mitali, you can continue. Okay. Now, I request Ms. Shifa Khan to introduce our chief guest. Over to you, Shifa. So, hello everyone. My name is Khan Shifa, and today I'll be introducing our honorable chief guest, Miss Swati Bedekar. Miss Swati Bedekar, Miss Swati Bedekar is a trustee of Vatsalya Foundation, Vadodara, president of Indian Federation of University Women's Association, director of Discovery Science Resource Group, Vadodara, proprietor of SM Graphics Educational Kits. While working as a science communicator in the interior villages of Dahod, Gujarat, she observed that girls studying from 6th standard onwards would regularly remain absent from the school. On the further investigation, she found out the Himalayan issue of mismanagement and ignorance of menstrual hygiene, which was its root cause. Additionally, women felt extremely guilty, and there were many misconceptions floating around the issue. In order to address this difficult problem, Ms. Swati Bedekar, under Vatsalya Foundation, started the Sakhi project. It was a path-breaking initiative of setting up low-cost organic sanitary pad manufacturing units for underprivileged ladies to help women and girls maintain their menstrual hygiene and also provide a source of income to this women. With the help of government, she started 115 units. She started such units in the developing countries like Cameroon, Zimbabwe, Bhutan, and water regions like Zatari refugee camping in Jordan. An eco-friendly terracotta Ashuddhinashak has been developed by her team for the disposal of sanitary napkins. She has also initiated the Hygiene Bucket Challenge, a hand-on activity kit on menstrual hygiene management along with the Vigyan Parasar Government of India for nationwide distribution. For her work, she was featured in BBC list of 50 women who made things happen in the year 2017. She has also set up a resource group called Discovery Science Resource Group in 2005 to improve education in rural areas. She has published many books, some of are Discovery, Chemistry around the Hygiene Bucket Challenge. She has received many awards as well as recognition for her work. Some of are award from Federation of Gujarat Industries in 2017, We Women of the Year award in 2016,
received Woman of the World Award from L'Oreal Paris and NDTV in the year 2016. Interviewed by BBC World Service Radio for the work in Qatari refugee campaign in Jordan, appeared in New York Times and Newsweek, both leading publications in USA. I am very much sure about it that this webinar will help many women to empower. Thank you. Hand over to Ms. Mitali. Thank you, Mitali. Shifa. Now, Mitali, principal ma'am, she joined just now. You can continue with principal ma'am ka introduction. Okay. okay, ma'am. Okay. For this event, we have with us one more eminent personality, Dr. Neeta Patel ma'am, principal of Sahyog College of Management Studies. She has a versatile personality who is not only performing role of principal at college, but also she is an entrepreneur as well as wife and mother. She has been into hospitality industry from 2012. Under her strong wing, Sahyog Mantra 2, which is a unit of Sahyog Hospitality Services Private Limited, is running successfully with the mission to host tourists from the world over with life-altering experiences. Now, I would welcome Dr. Neeta Patil Ma'am, Principal of Sahyog College of Management Studies. Hello, Yes, ma'am. am I audible? Yes, ma'am. And what about my video? Is it okay? Perfect, or shall I shut down, stop the video? Because I am unable to see. She is unable to see. She is saying, Patil ma'am. Ma'am. Hello? Shall I stop my video and continue talking? Yeah, ma'am, you can continue talking, ma'am. Yes, You yes, can. yes. Ma'am. Thank you. Because it is getting delayed. Yeah. Okay, I'll stop my video. Okay. Good ma'am. morning to one and all. Hello. Good morning. How are you? Good morning, ma'am. Yes, I hope everyone is safe and secure. Hello, everyone is safe and secure. Yes, ma'am. Yes, ma'am. thank you. I think everyone is mute or some people are unmute. Ma'am, some are Some like, people. yeah, some are on mute mode, ma'am, because there is Okay. disturbance, na? That's why we kept it. Okay. First of all, my heartfelt congratulations to Women Development Sale of Sahyog College of Management Studies, especially. They have organized, the team has organized such a webinar on for the awareness of women hygiene and empowerment. And it's really necessary. Especially मैं ये कहूँगी कि not only सिटी एरियाज में बट ये रूरल एरियाज में भी नेसेसिटी है आज की जो स्पीकर है आई थिंक वो इस बात के ऊपर हाईलाइट करेगी ओके और वो वाकई सब लोगों को पता रहेगा कि पैडमैन मूवी आने के बाद अक्षय कुमार को वो जो मतलब सबके याद में है, सबके इस जहन में है कि यस पैडमैन मूवी का हीरो, बट आज की जो स्पीकर है वो पैड वुमन, और हम लोग जितने भी पार्टिसिपेंट्स है जो यूट्यूब पे भी लाइव देख रहे हैं वो भी शायद से नहीं डेफिनेटली वो भी मैडम को डेफिनेटली पैड वुमन के नाम से अभी याद रखेंगे आज की स्पीकर मैम को। स्पेशली वो तो मैम सक्षमीकरण के बारे में है ही, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में है ही, एंड मैडम जो बात करेगी वो वुमेन हाइजीन के बारे में बात करेगी। आई विल गो टू एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, सक्षमीकरण कैसे पॉसिबल है, ये तो मेन बात है कि यहाँ पे जितनी भी वुमेन आज की वेबिनार में है, जो पार्टिसिपेंट्स है, उनको भी पता है, जो ऑलरेडी एम्पावर्ड है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में उन्होंने खुद को एंगेज रखा है, कर रही है। बट एक बात मुझे पूछनी है सबसे कि हम लोग जो हमारी बेटी को घर में जो काम बताते हैं, वही काम हम लोग जैसे रोटी बेलना है या हाउस होल्ड चोर्स है जो है, वो हम हमारे बेटे को भी सिखा रहे हैं क्या?
ये मेन बात है यहाँ पे। फ्रेंकली स्पीकिंग, एक एड बीच में आता था, आई थिंक सर्फ एक्सेल की एड है, जो जो सबने नहीं देखी होगी, बट जिस उसमें बताया गया है वो एडवर्टीजमेंट में कि बच्चे को, जो मेल बॉय बॉय है घर में, उसको वो कपड़ा उठाना, उसका उसका सब ठीक से रखना, वॉशिंग मशीन में डालना, धोना, ये सब बातें उसमें बताई गई हैं। तो मुझे लगता है एज अ वुमन, भले ही पहले के जमाने में ये हुआ नहीं रहेगा, इवन रूरल एरियाज में बोलो या अर्बन एरियाज में, रूरल में तो अभी भी मेल डोमिनेंट है, स्पेशली अर्बन में तो भी एटलीस्ट जो वर्किंग वुमेन है वो उनको हाथ बटाते हैं घर के पुरुष, बट रूरल में ये अभी भी वैसे ही ट्रेंड चल रहा है। तो ये बात है कि हमने, अगर हम लोग एज अ वुमेन ये स्टार्ट करें कि हम लोग जो हमारी बेटी को सिखा रहे हैं वही बात हमारे बेटे को भी हाउस होल्ड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखेंगे, तो आगे चल के जो पीढ़ी आएगी, शायद से वो जो इक्वालिटी एंड वो हम लोग बोलते हैं ना, कंधे से कंधा लगा के चलना है हमें, तो वो हो पाएगा, ऐसे मुझे लगता है। डेफिनेटली हो पाएगा। शहरों में ये हो रहा है, कई लेडीज कंधे से कंधा मिलाकर आगे भी चल रही है पुरुषों के, बट बट स्टिल मुझे ऐसे लगता है कि ये हर एक वुमेन ने अभी ये जरूरी है कि अपने बच्चों को उस सांचे में ढाले, कि सो दैट वो भी ये करें। स्पेशली एजुकेशन के बारे में, एम्पावरमेंट इज रिलेटेड टू एजुकेशन। अगर लड़की सीखी है तो सीखती है तो ही वो अच्छे से खुद को, फैमिली को संभाल सकती है। जो कहीं साल पुराने एक लड़की सीख गई तो उसका परिवार सीख गया, हमें अभी ये कहावत अभी मुझे लगती है कि बदलनी पड़ेगी। ये हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दो मेल कैंडिडेट रहे या फीमेल कैंडिडेट रहे घर का मेंबर, ये हर एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक अभी पढ़ा लिखा होना चाहिए घर का मेंबर, तभी ये इक्वालिटी की हम लोग जो बात करते हैं वो हो पाएगी। अभी भी गांवों में या शहरों में भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे लड़कियों को सिखाया जाता है, 10th स्टैंडर्ड तक डाला जाता है, 10th करने के बाद कुछ लड़कियां ड्रॉप आउट हो जाती है। वैसे देखा जाए तो 10th का रिजल्ट, अगर आप सब लोगों को भी पता है कि देखेंगे, तो वो जो रिजल्ट है सबसे अच्छा लड़कियां आगे है लड़कों से, बट स्टिल 10th होने के बाद 12th होने के बाद ग्रेजुएशन के लिए जो लड़कियां है उनका ड्रॉप आउट हो जाती है वो, तो वो नहीं होना चाहिए। हमें एज ए वुमन, एज ए गर्ल, हमें ये सब बातें हम खुद ने, हमारी जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है, वुमेन है, गर्ल्स है, उनके लिए सपोर्ट देना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है, कि सो दैट वो अच्छे से अपना करियर कर पाए, मुझे ऐसे लगता है। और इसके साथ ही मैं अभी मेरा स्पीच खत्म करती हूँ, कि सो दैट आगे मैम को बोलने को टाइम मिले इनफ। थैंक यू टीम। Thank you, ma'am. Now I request Mrs. Swati Berekar, ma'am, to take over the session. Over to you, ma'am. Well, thank you very much. Thanks to the principal, madam, and Ms. Rupali from Sahyog College. It's my pleasure to be meeting. I can see a lot of participants are already there on board. Of course, I'm going to talk to you about a project called Sakhi. I call it Sakhi, though this is a brand name of a product. This is something which has been developed out of thin air, out of nothing. बात ऐसी है कि would you be changing it? I mean, is somebody changing the screen? Yeah, ma'am. Yeah, someone is going to change it. You just tell us next. So accordingly, we'll follow it. Yeah, just say next. Okay. The thing is, as a science communicator, I was working with rural India, that is villages in Gujarat, particularly tribal villages, and wanted to teach the girls science.
STEM education is something which is my core subject, and I work on that. The thing is, there was a very peculiar thing I found, that there were no girls in the school. And when you don't find girls in the school, one can imagine what must be the reason. This is how you can see the cursor. This is how the girls were playing. They were out in the field. They were with their mothers, maybe doing some odd work at home, but not in schools. And then I realized when I spoke to their mothers that there is a massive taboo about menstruation, that mothers find it easier not to send the girls to the school. इसे बदलना तो था, because see, in India, 50% of the female population resides in villages. मतलब हम कितना सारा potential we are wasting it, because when they lose an opportunity to go to school, they lose an opportunity to have a choice of their own lifestyle. आप सब लोग पढ़ाई करोगे. I'm told to speak in Hindi and English. आप मुझे बता देना, if at all I happen to speak in a language and you don't follow, please just let me know. You get a lot of education and get an opportunity to work yourself, work for yourself, your family, and you can improve your lifestyle. But this kind of an option is never open for a girl, for a rural girl, particularly because she loses out on education. So what was needed? Do you think the kind of option you have, that of a sanitary pad, is not available in the villages? Well, if Coca-Cola and Lay's chips can be available in the village, so do sanitary pads. But the price of the pads is so high that barely a rural girl can think of availing them, buying them. Secondly, there is a psyche of an Indian woman to keep herself lowermost on her own priority list. So, खुद के period के लिए अगर कुछ सामान लाना है, तो that would be that is the last thing she would be doing. So, what do you do in such situation? You offer them a local solution, because the problem is absolutely local. Next. Excuse me, can someone change the slide? Yeah. And with this particular thought, Project Sakhi started. And it started way back. And of course, I started with the awareness, because men and women both were completely ignorant about this particular issue. एक औरत को 3-4 लड़के मतलब बच्चे होंगे, but then if you ask her के क्यों आता है माहवारी, she wouldn't know about it. So of course that had to be changed, and we had to work a lot on awareness first. Awareness as well as affordable access. And that's what we thought to do. And we created these machines where we inspired the women to work themselves, to come to the unit and work themselves, create a pad themselves. नहीं तो क्या होता है ना, वो गांव में पैड इज अ फॉरेन कंसेप्ट, वो शहर की लड़कियां यूज करती हैं. But then we had to bring about that change in their mindset कि नहीं आप ही बनाओगे, so you know exactly what goes inside a pad. कोई भूत प्रेत भी नहीं होता, या कोई ऐसी चीज भी नहीं होती जो गांव के लिए बनी ही ना हो. So that's how the training began. We established the first unit, small unit, with these small machines in a village or a small town called Devidbaria in a tribal district of Dahod. And that was way back in 2010. Before that, I had at least approached 16 collectors with this project. All of them had said no. But then, अगर आप ठान लेते हो कि कुछ करना है, so you got to have a heart of rubber. So if somebody puts you down, you're supposed to bounce back, and you got to have nerves of steel. जो कोई कुछ भी कहे पिघलनी नहीं चाहिए. And that's how this particular unit started. You can see the women learning to work.
one look at them and you will find out कि वो किस background से आती है. Maximum they had worked was in a village, had used a sickle probably. वो छोड़ के वो पहली बार machines चलाना सीख रही थी. Machines चलाना सीख रही थी. They were learning about the raw material, operating machines. They were learning about maintaining the machines, also marketing of the project. Next, please. Yeah. Okay. You need to go back a little. Go to Mahila. Yeah, one slide before. Yeah. You can hold it here. See, for someone who's only worked in fields, this was a major step. So we often call this project Sakhi is not just a project, but this is a university. And here, the women who had barely got a chance to go to school, जब वो यहाँ आ रही है, यहाँ वो सीख रही है और बड़े शान से उन्हें डिग्री मिल रही है MBA की, महिला इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. आप पीछे देख रहे हो जिनको ये MBA की डिग्री मिल गई है. नेक्स्ट प्लीज. Hello. Next slide. Anyway, I'll continue. See, when you start working with women, this becomes उनका एक वो livelihood का जरिया बन जाता है. And managing this livelihood was the most challenging thing. Somebody please change this idea. We started with very little, or rather nil income, nil inputs. पैसे कुछ भी नहीं थे. Barely machine और जो raw material लगता है उतने पैसे थे. But then अगर सही मार्केटिंग करना है तो there has to be movement of the goods. अब ये movement हम कैसे करें? See what happens. It is very important. जब भी आप enterprise शुरू करते हो ना, तो enterprise cannot remain your, जैसे आप ऑफिस जाते हो 9 to 5 अपना काम दिया हुआ काम करते हो. You can't be that. You have to live that enterprise. You have to be thinking all the time कि कौन सी वो चीज मेरे पास है, कौन सा वो रिसोर्स है जिसको यूज करके I can further my business. वही हुआ. बहनों को धीरे धीरे हम इस हैबिट में डाल रहे थे. तो एक दिन साहिमा बानो थी, उनका हस्बैंड ही सेड मैं एसटी में काम करता हूँ, हमारे यहाँ हमारे गांव में टेम्पो नहीं आता है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम बाहर माल अपना भेज नहीं सकते. बट देन एसटी बस इट्स समथिंग दैट गोज टू ईच एंड एवरी विलेज ऑफ गुजरात. तो आप उनसे बात क्यों नहीं करते? तो बस हम सारी बहनों को लेके चले गए एसटी के डायरेक्टर से मिलने, और उसके बाद सखी का कच्चा माल और पक्का माल सब कुछ एसटी बस में पूरे गुजरात भर जाने लगा, टहलने लगा. यू नो व्हाट, इट वाज सच अ फनी थिंग. दिस गर्ल्स कभी सिर्फ मायके जाते वक्त एसटी बस में चढ़ती थी, बट देन दे वुड गो टू द एसटी स्टैंड, अपने सामान का बोरा बस में चढ़ा के उसका टिकट निकालती थी, एंड देन दे वुड कॉल अप द डेस्टिनेशन, ये नंबर की बस में माल भेजा है, उतार लो. फर्स्ट साइन ऑफ एम्पावरमेंट. नेक्स्ट. अब बहनों का यूनिट चलाना, वो भी एक सब्जेक्ट जो बहुत बड़ा टैबू है. ऑफ कोर्स आप सब टीवी तो देखते हो. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर अ वुमन टू वेंचर आउट ऑफ द हाउस एंड वर्क? सासू माँ. राइट. सो हर्डल्स को हर्डल ना समझना इज द ट्रिक ऑफ रनिंग अ सोशल एंटरप्राइज. हमने क्या कर दिया, सास और बहू की टीमें बना दी. We made them partners in crime. आप दोनों मिलके काम कर लो, साथ में पैसे कमा लो. So एक दूसरे के बातचीत became very positive, not just the झगड़ा, but improving upon each other's work. And that, excuse me, can that disturbance be stopped? Yeah. मजा
आप फोटोग्राफ्स में शायद देख पाओगे कि सास और बहू दोनों मिलके किस तरह से काम करती है। द थिंग इज, इस बात से और एक चीज हुई, रूरल एरियाज में लेटली यू वुड बी सीइंग अपना बाह्य अपीयरेंस, आई मीन पीपल वुड बी वर्किंग ओनली on how they appear, wearing a colorful sari or wearing twinkle jewelry, but अपनी जो हेल्थ है उस पर से ध्यान सबका हट गया था। ये प्रोजेक्ट के साथ, क्योंकि हमने हर एज की औरत को इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व कर लिया, व्हाट हैपेंड वाज, अपनी सेहत पे उनका ध्यान वापस आ गया। नेक्स्ट प्लीज। एक्सक्यूज मी, कैन यू हियर मी? यस। अब सखी की पैड्स औरतें बनाने लगी, यूज भी करने लगी, उन्हें वो अच्छा भी लगने लगा। बेसिक प्रॉब्लम ये था कि एक लड़की घर से उठकर स्कूल तक नहीं जा सकती थी। नाउ विद पैड्स शी वाज एबल टू गो टू द स्कूल। उसके साथ हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ पूरी ताकत लगा के लड़ झगड़ के स्कूल्स में चेंजिंग रूम्स बनाए। सुनिए, 10 साल पहले स्कूल्स में टॉयलेट्स भी नहीं हुआ करते थे। सो वी specially made the government allot a room for the girls where they could change their pads, and you will be surprised, sanitizers आज बहुत ज्यादा प्रचलित हो गए हैं। 10 साल पहले हमने बहनों को सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर बनाना सिखाया, so that in absence of water they could still change the pad, use the sanitizer and clean themselves. ये होती है नीड बेस्ड प्रोजेक्ट की, जहां हम लोकल सॉल्यूशंस ऑफर करें। ग्रोथ इस तरह से होता है। एक दिन हम यूनिट में गए, सारी ऐसे ऐसे बैग गई थी औरतें। I said, what happened? They said, no, we cannot work in the unit because the entire village hates us. हमारा यूज किया हुआ पैड हम यहाँ वहां डालते हैं, कुत्ते उसे उठा के ले जाते हैं, यहाँ वहां वो दिखता है, and all the men are furious. said, ये अच्छी बात है। सरपंच जी बोले, हम नहीं काम करने देंगे, दिस इज यूर स्पॉइलिंग अवर विलेज, यहाँ वहां गंदगी पड़ी मिलती है। ऐसे रोके, जो आप पान पड़ी की खा के प्लास्टिक थूक देते हो सब जगह, वो गंदगी नहीं है ना? आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हेन इट कम्स टू ऑफरिंग अ सॉल्यूशन टू अ वुमन, ये गंदगी सबको बहुत खटकने लगी। लेकिन बात तो सही है, गंदगी और नो गंदगी, a used sanitary pad can actually spread a pandemic, actually can spread diseases, क्योंकि उसमें ह्यूमन ब्लड होता है, तो उसका यहाँ वहां फेंके जाना अच्छा नहीं है। एंड a magic happened. An Indian women-based organization thought about creating an incinerator, an instrument to dispose of the used or soiled napkins. पूरे जग में, विश्व में किसी ने ये सोचा नहीं था। I had heard of electrical incinerators, लेकिन electrical incinerators में अगर नैपकिन जलाना हो तो 1300 डिग्री से ऊपर इलेक्ट्रिसिटी लगती है। मैंने बहुत सारे गांव के सरपंचों से पूछा कि यहाँ बिजली कौन देगा। एक सरपंच बोला, हाँ हाँ मैं दूंगा, मेरे ऑफिस में लगा लीजिए, लेकिन ये मशीन काम क्या करेगा? ऐसे जो बहनों के मासिक में उनके पैड्स होते हैं ना, उन्हें वो यहाँ आके जलाएगी। वो जो भाग गया, आज तक नहीं दिखा। वेल, ऐसी स्थिति में हमें कुछ ऐसे बनाना था जो एक औरत अपने घर में रख सके, वो गांव के लैंडस्केप में घुल मिल जाए इतनी अच्छी तरह कि कोई उसकी तरफ देखे भी ना। तो my husband created this particular, this is another example. आपने पैरबैन मुरुगनाथम के बारे में सुना होगा। He was the one who created a solution for women for his wife's boobs, and my husband created this particular solution because I did not want to close down a good project because women didn't have a good disposal system. देखिए, टेराकोटा से बना है, गांव का हर कुम्हार इसे बना सकता है। So we were already creating more and more livelihood. इतना आसान है। The operation is so simple. ढक्कन खोलो, पैड को अंदर जाने दो. This particular thing acts as a storage chamber
और शाम होते होते ये नीचे से कोई भी जलता हुआ कागज अंदर डाल दो, जितने भी पैड्स दिन भर में यहाँ जमा हुए हैं वो सब जलकर खाक हो जाते हैं, उनकी राख बन के ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है। अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन टू बी यूज्ड इन रूरल एरिया। आजकल ये इतना ज्यादा प्रचलित हो गया है, शायद आपके शहर में भी आप घरों में ये मिनी अशुद्धिनाशक पाओगे। We named it अशुद्धिनाशक because the word अशुद्धि was very very closely associated with the periods, and deconstructing that taboo was very much necessary. Next, please. Can I have the next slide, please? Okay. जब ये deconstruction of taboo करना होता है, so normally what do we start with? Training programs like this. जहाँ गांव मिले, जहाँ औरतें मिले, वहां जाओ. Then what we tried was, posters लगा. गांव की ही लड़कियों को कुछ इस तरह से, गांव की लड़कियों को और गांव के मेन को कुछ इस तरह से पोस्टर्स में जगह दो, rather than having models from the cities. यही लड़कियां अपने बारे में और पैड के उपयोग के बारे में कहने लगी. हाँ, the posters were not exactly useful, क्योंकि कुछ दिन बाद we realized rarely people can read here. तो फिर हमने क्या सोचा, क्यों ना हम कुछ songs बना दे. So we started making songs to give the message of menstrual hygiene, what the process is all about, and how a girl can, in minimal words, understand about menstruation. So we just, garba ho, gaon ka function ho, we made songs in their own tunes और उसे बहुत ज्यादा पॉपुलर करा दिया. जैसे कि ओरे सखी तू तो मारी साची रे सहेली रे, भारे मारी जिंदगी ने करी ते तो सहेली रे. This way, there were a lot of science experiments, games and activities to promote this. Next slide, please. I'm trying to share something so that all the girls here would understand. Next slide, please. आपने देखा होगा ये भवाई है. भवाई is a folk part. इसी तरह से महाराष्ट्र में लावनी पे, गुजरात में गरबा पे, नॉर्थ इंडिया में जहाँ पे वो एक नौटंकी की तरह उनका जो ऐसे छोटे छोटे नाटिका करने के ये होते हैं दृश्य, ये है पथ नाटिका. इस तरह से ये है हमारी सीढ़ी जिसको हम सखी गीत कहते हैं. We made all of that and made it popular in the rural area. We put our words, our thoughts across to the masses. Next, please. मैं जानना चाहूंगी कि क्या आप लोग, आप में से कितने लोग जानते हो कि why a girl menstruates? You can wave your hand. If one person waves a hand, I would know. Do you know? Really? Tell me. क्या जानना चाहते हो? I think जो टाइम मुझे दिया गया है, I have chosen one of the poems. मैं रिसाइट करके आपको बताना चाहती हूँ why women menstruate. ठीक है, बोल दूं? एक छोटी कविता है जहाँ एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम है चुलबुली. वो बड़ी हो रही है तो उसके लिए ये पोएम है. ये पोएम वो है जो हर लड़की की माँ या हर लड़की की स्कूल टीचर उसके साथ बात करे. ठीक है. चुलबुली ये चुलबुली उड़ती रहती सारा दिन, खेले कूदे मजे करे जैसे हो कोई परी. चुलबुली ये चुलबुली. क्या हुआ है आज? Please, I have to read it, so please don't shift the slides. Excuse me. I'm reading from this itself, so please keep them. क्या हुआ है आज? क्यों कली है मुरझाई? सदा हंसते चेहरे पर क्यों उदासी है छाई? नहीं है कोई कष्ट ना कोई बीमारी, फिर क्यों शरीर से हुई अचानक खून की रिसाई?
ना कोई परेशानी, ना कोई बीमारी, शरीर के बदलाव की है ये कहानी सारी। शरीर में तुम्हारे भी आ गया बदलाव अभी, सीधा सा शरीर तुम्हारा लेने लगा है गोलाई। नेक्स्ट प्लीज, एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट। Yes, ma'am. We are doing. ओके, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये हम करते हैं ना तब पपेट्स के साथ, बहुत सारी चीजों के साथ करते हैं, बट यहाँ पे भी क्योंकि बहुत सारी लड़कियां मेरे सामने हैं, कुछ बातें मैं उन्हें जरूर कहना चाहूंगी। सो ये फीमेल सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होती है जो अपने जैसा नया जीव बनाती है। हमारे बॉडी की बाकी सारी सिस्टम्स अकेली काम करती है, जैसे कि हमारा श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, रुधिराभिसरण तंत्र। लेकिन प्रजनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट टेक्स टू पीपल टू वर्क एंड डू द वर्क, दैट इज क्रिएशन ऑफ अ न्यू लाइफ। ठीक है, प्रणालियां सब शरीर की कार्य अकेली निपटाए। प्रजनन प्रणाली अलग स्त्री पुरुष में मिलकर करे तो काम बन जाए। एक खास उम्र में हॉर्मोन्स का होता स्त्राव, एक खास उम्र में हॉर्मोन्स का होता स्त्राव, अंडाशय में बनता स्त्री बीज, यह है अंडाशय, अंडाशय में बनता स्त्री बीज और शरीर में आते कई बदलाव। शरीर में तुम्हारे गर्भाशय है बसा, ये गर्भाशय है, शरीर में तुम्हारे गर्भाशय है बसा, उम्र होते ही वो काम है करने लगा। अंडाशय बनाता अंडाणु जो डिंब वाहिनी तक आता, फेलोपाइन ट्यूब, जो डिंब वाहिनी तक आता, मिलता वहां पर शुक्राणु और फिर निषेचन है हो जाता। Here it meets the sperm and what happens? A new life is created. स्त्री बीज कहलाता अंडाणु और पुरुष शरीर से आता शुक्राणु। अगर मिल जाते ये दोनों तो नया जीवन होता शुरू। गर्भाशय में होता है निषेचित बीज का रोपण। यदि न हो ये मिलन तो होता गर्भाशय के अस्तर का निस्तारण। ये पोएम है, अगर अच्छे से इनैक्ट करो या ट्यून में गाओ तो बड़ा मजा आता है। ये है गर्भाशय में बसा हुआ अस्तर, आने वाले मेहमान के लिए जो बनाया गया। गर्भाशय में जमा हुआ खून होता है वो चाय नाश्ता, अगर आपके घर मेहमान आए तो आप उसे दे देते हो। लेकिन एक बात को याद रखना बहुत जरूरी है कि शरीर नहीं रखता पास जो चीज नहीं जरूरी। कुदरत के इसी नियम से आती है महावारी। देखिए, अगर पुरुष के शुक्राणु के साथ इसका मिलन ना हो तो ये सारी चीजें शरीर के सबसे बाहर जाने वाले रास्ते से, सबसे नजदीक के बाहर जाने वाले रास्ते से शरीर के बाहर फेंक दी जाती है। जैसे हमारे यहाँ साइनस भर जाए, नाक सबसे नजदीक का रास्ता, वहां से वो बाहर चला जाता है। कान में मैल हो जाए तो कान के जरिए से वो बाहर फेंका जाता है। नीचे की तरफ नंबर 1 से हमने पिया हुआ पानी हम बाहर फेंक देते हैं, या नंबर 2 से पिया हुआ खाया हुआ खाना बाहर फेंक देते हैं। वैसे ही ये है होल नंबर 3 जो बहुत जरूरी है लड़कियों में, जो होल नंबर 1 और 2 के बीच में होता है। नेक्स्ट प्लीज। गर्भाशय में होता है निषेचित बीज का रोपण और ना अगर हो ये मिलन तो गर्भाशय के अस्तर का हो जाए निस्तारण। माहवारी की बात है ये, डरने की कोई बात नहीं। माहवारी की बात है ये, डरने की कोई बात नहीं। तुम हो अभी चुलबुली जो अब हो गई है सयानी। मतलब आप वही छोटी सी बच्ची हो, सारी बातें वैसी की वैसी है, सारा प्यार वैसा का वैसा ही है, बस आप थोड़ी सी सयानी हो गई हो क्योंकि आपके शरीर में प्रजनन तंत्र अब काम करने लगा है। यहाँ पे मैं एक और बात खास करके लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि
आप बहुत सारी जगह सुनते हो कि गर्ल्स आर टेकिंग डिसएडवांटेज ऑफ, एडवांटेज ऑफ, वो सब क्या है? जस्ट बिकॉज यू डोंट नो अबाउट योर बॉडी। बहुत सारी लड़कियों को लगता है ना कि इस उम्र में, खास करके जिस उम्र में आप हैं, मैं भी डेट करूं किसी से, क्लास में वो स्पेशल व्यक्ति आए और आज मुझे देखे, आईने में आप खुद को देखते हो तो आपको बड़ा अच्छा भी लगता है। ये सब होता है हार्मोन्स की वजह से, और इसलिए होता है क्योंकि प्रजनन तंत्र का काम ही है एक नया जीव बनाना। बट देन इफ यू लुक एट इट होलिस्टिकली, ह्यूमन बीइंग्स, वो एक जो एनिमल इंस्टिक्ट होता है ना, उसको छोड़ के आगे चला गया है। इसीलिए हमें कब और कैसे अपने गर्भाशय का उपयोग करना है, इसकी जानकारी हो गई है। सो यू डेफिनेटली कैन डिसाइड व्हेन यू वांट टू हैव अ चाइल्ड। और उसके पहले बॉयफ्रेंड का होना या किसी के साथ संबंधों का होना, ये होता रहे, लेकिन उसमें से एक नया जीव जन्म ना ले, ये बिल्कुल आपके हाथ में है। और आपका संबंध कब किसके साथ हो, ये भी बिल्कुल आप खुद डिसाइड कर सकते हो। तो whenever somebody tries to mess with hole number 3, you have a right to stop it. Understand? Next slide, please. हम वापस आते हैं सखी प्रोजेक्ट के ऊपर। ये बातें मैंने इसलिए आपसे करी क्योंकि थ्रू प्रोजेक्ट सखी मैन्युफैक्चरिंग तो शुरू हो गया, 1 यूनिट से बहुत जल्दी 10 यूनिट हो गए, 15 हो गए, 50 हो गए, गांव गांव में स्प्रेड होने लगे। तब इस माल की बिक्री भी जरूरी था। तो ये बिक्री करने के लिए rather than calling film stars या rather than giving away advertisements कि मैं white पैंट पहन के घूम सकती हूँ, हमने ये चीज किया that we spread the knowledge about menstruation among the girls. We taught them to think what is menstruation and how they can use it to get a better future, to manage their career. उससे होती हुई तकलीफें हम दूर कैसे करें, हम हाइजीन को कैसे मेंटेन करें, और ये पूरा जो मासिक चक्र है उसका उपयोग करके हम अपना फैमिली लाइफ भी कैसे सुधारें। नहीं तो आप गांव में जाओ, होगी लड़की 25 या 30 बरस की, एक बच्चा साथ में होगा, एक हाथ में होगा, और शायद एक के आने की तैयारी होगी। ये सारी चीजें आप रोक सकते हो if you know about your menstrual cycle. You will exactly be able to plan a better life for yourself. अब हमें ये चाहिए था कि एक बहुत सारा अंडर प्रिविलेज सेक्शन है इंडिया में, वो भी इस हाइजीनिक प्रोटेक्शन के अंदर आए। तो हमने एक प्रोग्राम शुरू किया, हाइजीन बकेट चैलेंज। ये क्या चैलेंज है? वन एम्पावर्ड वुमन एम्पावर्स अनदर। मतलब सखी के 12 पैकेट्स, साल भर का हाइजीन आप किसी को गिफ्ट करें, जिसकी कीमत बहुत सामान्य होती है, छोटी सी 160 रुपए, मतलब आधा पिज्जा या एक कॉफी। छोटा सा गिफ्ट किसी लड़की को देके आप इतनी सारी लड़कियों का लाइफ सुकर बना सकते हो, जिससे वो स्कूल में जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। I'm trying to look at your okay, this is just attendance. कोई प्रश्न हो तो मैं देखना चाह रही थी। देखिए, सखी का हमने पहला यूनिट शुरू किया था 2010 में। वहां से लेके बिल्कुल सामान्य से सामान्य स्त्री, जो हार्डली बेयरली स्कूल भी जाने का मौका उसे मिला हो ना मिला हो, वो कॉन्फिडेंटली माल को बनाना, मतलब पैड्स को बनाना, एज वेल एज उनका बिक्री करना, ये फुल सर्कल उन्होंने कंप्लीट कर लिया। जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो देखिए, ये ऐसे आई थी सब लेडीज मेरे पास, इतना बड़ा लंबा घूंघट ओढ़ के। आप अब देखोगे तो घूंघट अभी भी है, लेकिन या तो वो सिर पे टोपी और मुंह पे मास्क है, या ये घूंघट है सेल्फ एस्टीम का और सेल्फ कॉन्फिडेंस का। एजुकेशन एंड डिसिप्लिन एंड लर्निंग, वर्किंग, एक्चुअल वर्किंग, हैंड्स ऑन,
gives you these things. Next, please. Next, please. Okay. Now, when you run a social enterprise, it is very, very important कि वो एक एक दायरे में बंद होके ना रहे. जब लेडीज अपने घर से बाहर निकल गई थी, तो मुनासिब था, जायज भी था कि वो हर स्कूल तक पहुंचे, दूसरे गांव में, नियरेस्ट टाउन में या बड़ी शहर में भी पहुंचे. तो हमने क्या किया, इसके साथ साथ ये प्रोजेक्ट को आगे करने के लिए जो भी हो सकता है, यू कैन सी द पैडमैन पोस्टर हियर. हाँ, वो इसीलिए है क्योंकि ये पैडमैन सिनेमा जब बन रहा था हमें पता नहीं था, लेकिन उनका टीम आके हमारे पूरे प्रोजेक्ट का स्टडी करके गया था कि ये प्रोजेक्ट को गांव में कैसे चलता है, कैसे गांव की महिलाएं इसमें इन्वॉल्व होती है, वो इसके बारे में क्या सोचती है. तो डेफिनेटली ये पिक्चर के साथ साथ हमारा उस तरह का एसोसिएशन रहा भी. हमने ये वेंडिंग मशीन्स जो बिजली पर नहीं चलते, जैसे हमारा डिस्पोजल सिस्टम बिजली पर नहीं चलता, ये वेंडिंग मशीन भी बिजली पर नहीं चलता. एक कॉइन डाल के गर्ल्स कैन डेफिनेटली गेट अ पैड फॉर देमसेल्व्स, और इसी की वजह से वो काम कर रहे हैं. Excuse me, I will need the presentation. Or should I start mine? Should I share my screen? Excuse me. ये हमने शुरू किया. Okay, fine. Whenever you can, you please start it. आपको सुनने में मजा आ रहा है? हेलो? हाँ, आप मतलब अपना ये सिर हिला के भी जवाब दे सकते हो, क्योंकि क्या है, Yes, आप ma'am. लोग भी आगे चल के एंटरप्रेन्योर्स बनने वाले हो, है ना. आई वुड से डोंट लुक एट ओनली जॉब ऑप्शन. अपना खुद का काम शुरू करते हो ना, देन स्काई इज द लिमिट. और जिस तरह के मैंने एक प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए आपको कुछ इनोवेशंस बताए, वैसे अनेक सारे इनोवेशंस आप कर सकते हो. बात ये है, आपके मैडम का फोन है, तो लेट मी टेक इट. हेलो, हेलो, यस, ऑल राइट, आई एम ऑडिबल राइट. हाँ, या ओके फाइन, मैं अपना ये शुरू करती हूँ स्क्रीन. या ओके. बात ऐसी है, when you actually आपको अपना प्रोजेक्ट कंसोलिडेट कैसे किया जाए उसको, here I would like to talk to you how to run an enterprise, because all these things were nice, fun. The biggest challenge was bringing the women to the center, deconstruction of that taboo. वो taboo के लिए आपने देखा, we left no stone unturned. We deliberated with academic bodies to bring this lesson in the curriculum. We deliberated with the panchayats, talked to the men to make sure that women in the village also get this facilities so they can go to the work. इसमें woman empowerment keeps happening. अगर locally उनको अपना पैड मिल जाए, that makes a very big difference. Empowering school girls was another thing. We must have reached out to at least 10,000 schools so far across India, because our project runs in 22 states of India, in having 166 units, and wherever these units are there, we are sort of having women going out to the nearby schools, telling the girls to use pads, to dispose them responsibly, and work with it. Okay. Third important point is creating these facilities. If you see, we have such facilities created on every bus stand, every railway station,
every common washer place in a village. Bus stand and bus stations are common across. If you are traveling by train, you will find these facilities available to women on every station. Then next part was creating this into a movement. जैसे हाइजीन बकेट चैलेंज जैसा मूवमेंट तैयार करके हमने सारी थिंकिंग क्लास वुमेन, मिडिल क्लास वुमेन को इसमें इन्वॉल्व किया, सो दैट दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट. एंड डेफिनेटली व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, आपके संपर्क में आई हुई हर लड़की, फिर वो आपकी मेड सर्वेंट हो या फिर वो और कोई हो जिनसे आप इंटरेक्ट करते हो, दे वुड स्टार्ट फीलिंग कि आपकी सब्जी वाली हो, कोई भी हो, दे वुड स्टार्ट फीलिंग वेल, इफ शी इज टॉकिंग अबाउट इट, इट्स कूल टू टॉक अबाउट इट एंड आई आल्सो मस्ट टॉक. और ये हमारा एक्सपीरियंस है कि आफ्टर दिस प्रोजेक्ट गर्ल्स एक्चुअली हैव स्टार्टेड गोइंग, विजिटिंग द village primary health centers to speak out of their problems. जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. और एक बात है डाइवर्सिफिकेशन. कभी भी एक प्रोडक्ट आप लेके चलो तो वहां ठहर मत जाना. तो हमने जैसे अगर आप आपका होटल या रेस्टोरेंट शुरू करते हो या होम बेस्ड बिजनेस शुरू करते हो, definitely get into baking, make the cakes, make orders for small parties, make cookies, make chocolates, you would be doing that, right? इसी तरह से हमारा एरिया सैनिटरी पैड जितना रिस्ट्रिक्टेड ना रखते हुए, we started making soaps, hand sanitizers, we started making period panties. देखिए एक मदर की सबसे बड़ी क्या कहते हैं प्रॉब्लम ये होता है कि मेरी बेटी को मैं स्कूल भेजूं and unwarranted period doesn't come, na, it doesn't give you notice, it just comes whenever it has. So she will be humiliated in the school. अगर पीरियड आने के टाइम में आप ये पीरियड पैंटी पहन के जाओ, that gives you protection for next 4 to 5 hours. This is one of the biggest advantage. उसके बाद तो ये डाइवर्सिफिकेशन है. हमने डाइवर्सिफाई किया एडल्ट डायपर्स में. ये प्रोजेक्ट करते करते वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर द सीरियन रेफ्यूजीज who are living in a Dhatari refugee camp. UN approached us, United Nations. They said कि ये बहनें हैं, उनके पास कोई काम नहीं है. So we created units in such a way कि वो वहाँ अपने लिए और अपने घर में जो पैराप्लेजिक पेशेंट्स है, बिकॉज दे वर इन द वॉर जोन. बहुत सारे लोग घर में थे जिनको गोली लगी है, पैर टूट गया है, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, ओल्ड है. उन सब के लिए हमने एडल्ट डायपर्स तैयार किए. और ये डायपर्स वहां पे यूजफुल जब हुए, तब हमें पता चला कि यही नीड इंडियन मिडिल क्लासेस को भी हो सकती है, जो अपने पेरेंट्स के लिए 24 आवर्स हेल्प नहीं हायर कर सकते. सो ये एक्सपेंसिव पैड्स हम सिर्फ 20 रुपए में या 25 रुपए में लोगों तक पहुंचाते हैं. एक्सपेंसिव एडल्ट डायपर्स जो उनको इट्स अ बून, जो अपने ओल्ड पेरेंट्स को एक लाइफ ऑफ डिग्निटी दे सकते हैं. सो डाइवर्सिफिकेशन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. और एस्पेक्ट्स ऐसे हैं कि जैसे कंडक्टिंग स्टडीज, डॉक्यूमेंटिंग ऑल ऑफ दिस थ्रू एकेडमिक एजेंसीज लाइक कॉलेजेस लाइक यू ऑल, एंड we started a certificate course, and that certificate course actually helped a lot of women to get on board. उनको बैंक से बकायदा लोन मिलने लगा ये सर्टिफिकेट के मिलने के बाद. सो जो चीज यूं ही कुछ लड़कियां स्कूल में आए इसके लिए शुरू हो गई थी, वो अब क्या बन गई थी, एक सस्टेनेबल रूरल बेस्ड बिजनेस. आपको जान के खुशी होगी, अभी पैंडेमिक आया, पीपल वेर स्टक एट होम. जो भी शहरों में थे, मेनी ऑफ देम लॉस्ट देयर जॉब्स, बट मेरी एक गांव की बहनें वो अपने पैड्स बना रही थी, और वो ये पैड्स लोकल हॉस्पिटल्स, पीएचसीज को सप्लाई भी कर रही थी. ज्यादातर के बहुत सारी बैंक्स में जो बैंक शुरू थे, उनको जो सैनिटाइजर चाहिए था, मेजर
सिटीज में, मतलब स्मॉलर टाउन्स में, 2 tier सिटीज में ये सैनिटाइजर का सप्लाई सखी के यूनिट में से हुआ है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, ये कुछ छोटी सी स्टोरीज है हमारे शीरोज की। हीरो वर्शिप आप बहुत बार करते हो, इन शीरोज को भी देख लो। ये है मूड़ी बेन, एक धानपुर नाम का छोटा सा विलेज है, खेतों के बीच में उसका यूनिट है। ये यूनिट में सर्वाइकल कैंसर जो आप देखोगे बहुत बड़ी समस्या है आजकल, पर्टिकुलरली सिटीज में, जब प्लास्टिक बेस्ड पैड्स लड़कियां यूज करती हैं। ये समस्या इस गांव में भी थी, लेकिन प्लास्टिक बेस्ड पैड्स की वजह से नहीं, अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से। ट्राइबल्स है तो उनका सिस्टम थोड़ा फ्री है, मल्टीपल पार्टनर्स उनके होते हैं, और वो वायरस बढ़ता है अगर उसे अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट मिले। तो मूडी बहन ने, वो पहली मेरे पास आई तो उसे भी एक फोड़ा नीचे की तरफ शुरू हुआ था। शीसेड हमारे गांव में सबको होता है। तो जब हमने रिसर्च किया, वो गांव में मैक्सिमम विमेन, पूरे इंडिया में सबसे बड़ा नंबर था इस डिस्ट्रिक्ट का इन सर्वाइकल कैंसर। तो मूडी बहन ने यूनिट शुरू किया, आसपास के 25 गांव में वो लड़कियों को पैड्स देने लगी सो दैट दे कुड परस्यू देयर एजुकेशन। ऑल्सो वी रिड्यूस द नंबर ऑफ सर्वाइकल कैंसर केसेस। बात ऐसी है ना कि मैक्सिमम पैड्स आर डन मेड आइदर बाय चाइना और बाय ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, और ये जो कोल्ड कंट्रीज है वहां पे उन्हें प्लास्टिक बेस्ड प्रोडक्ट चलते हैं। बट देन हमारे देश में जहाँ 35 to 40 एवरेज टेम्परेचर होता है, that can cause a lot of problem to women skin wise, and it automatically becomes carcinogenic. So usko stop karne ke liye the next step was to stop using plastics in the pads, and we created 100% biodegradable pads using indigenous material. ये है यूनिट, ये है शांति बेन। उनका स्टोरी तो बहुत व्हाट यू से दिल को छू लेने वाला है। She was thrown out of the village. They had declared her a चुड़ैल। अब ये चुड़ैल ने ये यूनिट जब शुरू किया तो गांव की बाकी सारी औरतें उसके पास जाने लगी, हमें भी काम करना है। और जो चुड़ैल थी वो आज उस गांव में एक एंटरप्रेन्योर है, गांव की 25 औरतें उसके साथ काम करती हैं। ये है सखी यूनिट, मेरे ख्याल से ये अख्तर बहन है, आई कैन सी हर। अख्तर बहन ने धर्म और जाति के सारे बंधनों को तोड़कर अपने मोहल्ले की सारी बहनों को इंडिपेंडेंटली काम करना सिखाया, और उन्हें भी वो इज्जत दिलाई जो एक औरत का हक होती है। नेक्स्ट प्लीज। द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, ये सारी औरतें अगर सखी के साथ ना जुड़ती तो शायद उनका यू नो व्हाट, उनका जो स्टेटस था दैट वुड हैव बीन दैट ऑफ अ मेड, हाउस मेड इन इंडिया। लेकिन बिकॉज दे गॉट टुगेदर विद सखी, टुडे दे आर लीडर्स ऑफ मेड इन इंडिया पैड्स। जिस आत्मनिर्भर भारत का सपना हम देख रहे हैं, ये सारी औरतों ने उसे सच किया है। सखी का जो अपसर्ज है, स्टोरी है, आई हैव शेयर्ड इट विथ यू। थैंक यू वेरी मच। As students, I'm sure you would have a lot of questions, and I would love to interact with you. You're free to ask your questions, please. Thank you. Thank you very much, ma'am. Students, do you have any queries? You can put it into chat box. You are free to ask. Should I open the chat? Girls, you are free to ask. You can ask. You can put your question in the chat box, please. I can Chat see box is one open. question is somebody is asking about some pain. My name mention करूँ या नहीं छोड़ूं? Okay. Students, there is no need to mention your name. You can ask your question. You just feel free to ask your question. You can ask any query to ma'am.
She'll And you help can you. ask straight Okay. away. Hmm? Ma'am, actually, that is there is a disturbance, na? If we unmute them, that's why we just kept them on a mute mode, ma'am. Okay. But then I've not come across any question really. Um, Yeah. This what to do on? if Okay, you have any okay. questions, you can ask them. The faculty, if you can spot Yeah. any questions, you may please ask. Yes, ma'am. Yeah, ma'am. Ma'am, there is one question. Yeah. Being a woman, like we or like हमें ही हमारे पेन के बारे में बोलने के लिए थोड़ा डर लगता है. ऐसे क्यों? Hmm. Like why women should like having this kind of God has given this thing, so we are into God put us into the trouble. Why we feel like this now? Actually, ये पेन क्यों होता है? Yes, often it happens. जब भी मैं लड़कियों से मिलती हूँ, I ask them like आपको पिक्चर जाना अच्छा लगता है? They like it. आपको पिकनिक जाना अच्छा लगता है? They like it. आपको पीरियड में आना अच्छा लगता है? एकदम से चुप हो जाती है. मैंने आपको एक गर्भाशय के बारे में दिखाया था. I've shown you how your uterus looks like. Now just consider this is your uterus, okay? ये सर्विक्स है और ये वजाइना है. अब देखिए पूरा शरीर से the blood is going into the uterus to take care of the young life that is going to be born, okay? अब इसको जब शरीर के बाहर जाना है, ये सारे लिक्विड को, वाई शरीर नहीं रखता पास जो चीज नहीं जरूरी, कुदरत के इसी नियम से आती है महामारी. तो when the blood flows out of the body, blood is quite thin so it flows out fast, लेकिन उसके शरीर के अंदर एक अस्तर भी होता है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं. even that goes out. पूरा system to welcome a new baby goes out of the body. So our muscles have to actually work. जैसे ये पल्लू में अगर मैं पानी भर दूं और मुझे वो पानी निकालना है, I would really have to उसे निचोड़ना पड़ेगा, right? इस तरह से निचोड़ के blood moves out of the uterus. Now आप सोचिए अगर आपकी मांसपेशियां इतना सारा काम करेगी तो दुखेगी, राइट? अगर आप घूमने जाते हो, पिकनिक जाते हो, 20-20 किलोमीटर चल के आते हो, तो पैर दुखेंगे या नहीं? तो जब पैर दुखते हैं तो क्या काट के फेंक देते हो? नहीं, आप बाम लगाओगे, आराम करोगे या कुछ पेन किलर खाओगे. यूटेराइन पेन के लिए हमें यही करना चाहिए. अगर ये करोगे तो द पेन विल बी टेकन केयर ऑफ. कुछ आसन करिए या उसको कुछ हॉट वाटर बैग से सेक लीजिए, बट डोंट एवर थिंक ऑफ हेटिंग योर ओन पीरियड. बहुत ही साइंटिफिक सिंपल सी प्रक्रिया है, और जस्ट बिकॉज लड़कियों को एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है टू नर्चर अ चाइल्ड, नर्चर अ बेबी इनसाइड हर बॉडी, ये सारा खून का जमा होना, और बिकॉज देयर इज खून, आप हमको जो डर लगता है ना पीरियड का, वो इसी वजह से लगता है बिकॉज देयर इज ब्लड इन्वॉल्व. अगर इफ इन मेन वो स्पर्म्स के साथ कुछ ब्लड निकल आता तो वो भी उससे इतने ही डरे हुए रहते. जस्ट बिकॉज देयर इज नो ब्लड, they don't think of themselves as unpure, impure. ये सारी बातें उनमें नहीं होती हैं. अब बात ये है कि ये भी जान लेना बहुत जरूरी है कि पीरियड लड़कों का आता है या नहीं आता है. आपके शरीर में गर्भाशय में जमा हुआ खून के बाहर जाने में दैट इज अ मंथली प्रोसेस. महीने में एक बार वो प्रोसेस होता है. एक महीने में एक ही बार द एग वुड कम टू द यूटेरस. If it gets fertilized, it stays there and grows into a fetus. If it doesn't get fertilized, it goes out of the body. अगर शुक्रकोश भर जाए तो लड़कों में भी they are sent out of the body, irrespective of whether उनका संबंध एक लड़की के साथ आए या ना आए. Just because there is no blood involved, उन पर कोई पाबंदियां नहीं है, ठीक है ना?
4 दिन भी whenever a girl's uterus is being emptied out, खून है, तो हम उसे मंदिर जाने से मना करते हैं, मस्जिद जाने से मना करते हैं, और हर 2 दिन में शुक्रकोश का साफ होना, ये प्रक्रिया शुरू रहती है। फिर भी हर मंदिर में पुजारी, हर चर्च में पादरी, हर गुरुद्वारे में गुरुजी और हर मस्जिद में मौलवी आदमी होता है ना। तो अगर खुदा या भगवान को उनसे परहेज नहीं है तो आपसे भी परहेज नहीं है। हाँ, आप जाओ ना जाओ ये आपका पर्सनल डिसीजन है, लेकिन सच्चाई जान के डिसीजन लो कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? आई थिंक आई टोल्ड यू अबाउट योर पेन। उसकी बातें कैसे करो, तो जरूर उसकी बातें करो। लड़के बड़े होते हैं और उनको दाढ़ी मूंछ आ जाती है, शेविंग करते वक्त कटता है, तो आउट करने से कतराते हैं क्या? नहीं ना। तो अगर आपको पेन हो रहा है तो why should you be? It's a natural thing, and getting a period is your power, है ना, आपकी सुपर पावर है वो। क्योंकि like you, only a girl's body can create a new life, not a man's body, never। ठीक है ना। What might be the reasons due to which periods are irregular? Okay, irregular उसके अनेक reasons हैं। जैसे कि it mainly depends on supply of hormones। जो endocrine gland में से hormones निकलते हैं शरीर में, appropriate time पे appropriate hormones निकलते हैं। वो अगर appropriate ना हो, आप जानने की कोशिश करिए what are hormones? Hormones are proteins। अगर हम बचपन से अच्छे प्रोटीन्स खाते हैं तो गुड प्रोटीन्स विल बी सिक्रीटेड। ठीक है ना। बॉडी भी एक मशीन की तरह काम करती है, तो उसको सही टाइम पे सही नरिशमेंट जरूरी है। सही नरिशमेंट, आप बर्गर खाओगे, पिज्जा खाओगे तो आपके शरीर में कार्ब्स जाएंगे, तो अच्छे प्रोटीन्स कहाँ से आएंगे? ठीक है। सो इरेगुलर सप्लाई सीक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स और एनी अदर एलिमेंट जैसे एनीमिक होना वगैरह वगैरह कुड बी। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है, देखिए पीरियड्स 20 दिन से लेके 45 डेज तक वेरिएशन से आ सकते हैं, लेकिन अगर 15 दिन में आ रहे हैं या 60 दिन में आ रहे हैं, दोनों ही, या 46 दिनों में आ रहे हैं, तो दोनों ही मामलों में आपको डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है, who would set your hormone secretion process right. Okay. What is menstrual imbalance can be a reason for weight gain? Yes, it can be. It very much can be. अगर बहुत ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन फ्लो हो रहा है, you tend to eat excess, तो वो जरूर हो सकता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को इसी प्रोसेस पे एक वर्कशॉप और करवाना चाहिए, जिसमें we will discuss all these things. How much blood does a woman lose during? Very good question. In a period, a woman loses 60 to 70 grams of blood. ठीक है, वो भी 4 दिनों में, 4 या 5 दिनों में। So when you feel मुझे बहुत ज्यादा heavy blood loss हो रहा है, it is the मतलब आपका endometrium going out of the body, not the blood. कहती है ना लेडीज, मुझे तो लीटर ब्लड जाता है। अरे नहीं जाता, अगर लीटर भर ब्लड बाहर जाएगा तो मर जाओगे इंस्टेंटली। ओके, ब्लड जाता है 60 टू, एक दिन में अराउंड 15 to 20 ग्राम्स, बट देन दैट इज इनफ टू मेक यू फील वीक। वीकनेस के लिए वो सही है, सफिशिएंट है। तो आपको आराम करना ही चाहिए, अच्छा खाना खाना ही चाहिए। नेवर फास्ट ड्यूरिंग योर पीरियड्स। यू मस्ट, मतलब याद रखिए कि शरीर का वो खराब खून नहीं है, शरीर का वो राधा सबसे अच्छा खून है, जो एक बच्चे के भरण पोषण के लिए आया था। ठीक है, सो यू मस्ट ईट वेरी वेल, बेटर फूड एक्चुअली ड्यूरिंग दैट टाइम। हाउ मेनी आवर्स शुड, व्हाट वाज दैट क्वेश्चन? How many hours? Okay. So How many times a frequency of day changing should pad. change a panty liner? Panty liner, every 6 hours you must change your pad. There is a reason for that. क्योंकि if you don't, you are likely अपना खुद का blood, you know, it starts generating bacteria after 6 hours. और जब वो आपके बॉडी के कांटेक्ट में आए तो that can give you infection. And in some cases, आजकल आता है ना 12 घंटे चलने वाला पैड। नो, हमारी मजबूरी थी क्योंकि हमें डिस्पोजल का कोई जरिया नहीं था, लेकिन अब आपके पास डिस्पोजल का जरिया हो, which is the responsibility of every institution to provide it to girls.
अगर आपके पास डिस्पोजल का जरिया हो तो यू मस्ट चेंज पैड, अदरवाइज आपको टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है, विच इज बुखार आना, ठंड लगना, एंड दैट कैन बी फेटल एट टाइम्स. मैन, व्हाट इज द नॉर्मल फॉर ब्रेस्ट टू हर्ट ड्यूरिंग पीरियड्स? यस, पूरा शरीर, मतलब यूट्रस से जुड़ा हुआ हर नर्व, हर मसल दुखेगा, क्योंकि ये प्रक्रिया है ना, ये इतनी ज्यादा भारी और लंबे समय तक चलती है कि हर, इवन योर हार्ट मसल्स विल पेन. बहुत ज्यादा पेन होता है. किसी किसी को नहीं होता, जो ज्यादा ब्रेव होते हैं या उनका शरीर, आई मीन वेरी फ्यू गर्ल्स वुड बी देयर जिनको पेन नहीं होता. नहीं, तो पेन होगा, बिकॉज एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्शन जब मसल्स का होता है, इट एक्चुअली कट्स ब्लड सप्लाई टू दैट पार्ट. सो व्हेन ब्लड सप्लाई इज कट, इनडायरेक्टली ऑक्सीजन सप्लाई इज कट. सो पेन होता है, एंड इट शुड नॉट बी इग्नोर्ड. पेन के लिए आप रेस्ट लेना, एडिक्वेट रेस्ट लेना जरूरी है. How much blood does a woman lose during menstrual cycle? I told you it is 60 to 70 grams. उससे ज्यादा जाए, मतलब दिन में 3 या 4 पैड से ज्यादा जब भी आपको बदलना पड़े, then that is an alarm. See a doctor immediately. Okay. Sometimes due to hormonal imbalance, periods continue for more than 15 days. Can it be a reason of serious health issue? It is very much a reason for serious health issues. इसका ये मतलब है कि आपके शरीर में जो प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़नी चाहिए, क्या होता है, पीरियड जब शुरू होता है तब ईस्ट्रोजन, फीमेल हार्मोन्स की मात्रा शरीर में बढ़ती है और प्रोजेस्टेरॉन की कम होती है. लेकिन दैट पीरियड जैसे ही एंडोमेट्रियम शरीर के बाहर जाता है, the period has to stop. So male hormone, that is progesterone की मात्रा शरीर में बढ़ने लगती है, ईस्ट्रोजन कम होने लगता है. ये प्रक्रिया से आपका पीरियड स्टॉप हो जाता है. ये अगर 15 दिन तक कंटिन्यू चल रहा है तो इसका सही सीधा सा मतलब ये है कि प्रोजेस्टेरॉन नहीं सीक्रेट हो रहा बॉडी में. तो उसको होने के लिए या ईस्ट्रोजन को कंट्रोल में लाने के लिए आपको किसी तरह के मेडिकेशन की जरूरत है. सो और सबसे बड़ी बात तो, यू आर टर्निंग इनटू एन एनीमिक पर्सन. अगर 15 दिन रोज 15-15 ग्राम ब्लड आप लूज करो तो क्या होगा? ऑफ कोर्स एनीमिया होगा. सो डेफिनेटली इमीडिएटली सी अ डॉक्टर. What causes hormonal imbalance, and wanted to know what is PMS? Okay. Ma'am, is it normal for breast to hurt during the period? Yes, it is very normal for all parts in the body to hurt. What causes hormonal imbalance? It is your, what do you call, it's a kind of type of food habits you have. That is number one. या number two, आपके शरीर में कोई और तरह का जैसे आपके और अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स, उसमें कोई डिसऑर्डर हो, दैट कैन अफेक्ट हॉर्मोन्स. अदरवाइज इट इज डेफिनेटली योर फूड हैबिट्स. अगर आप बहुत ही एनीमिक हो तो यू डोंट सीक्रेट गुड हॉर्मोन्स एट द राइट टाइम. जब ईस्ट्रोजन बॉडी में कम होता है तब आपका हैप्पीनेस हार्मोन जो है, वो भी बॉडी में कम होता है, उसकी मात्रा भी कम हो जाती है. देन यू फील सिक, यू फील इरिटेटेड, यू फील यू आर इन पेन, यू फील लाइक क्राइंग. ये सब चीजें हो, आपको अच्छा लगे ना लगे.
Not able to hear you, ma'am. Is it the same at everybody's ends? Uh, please have patience. She is rejoining. Okay. I think there Yeah, is not an issue, ma'am. Uh, am I visible? ma'am. Am I audible and visible to you? Yeah, you are audible, ma'am. You are very much audible, ma'am. Hello? Yeah, ma'am. You are audible, ma'am. You are Hello, audible. am I visible? Ma'am, you are not visible, but you are audible, ma'am. Can you hear me, ma'am? Hello, ma'am. Uh, Yeah, ma'am, you're yes. audible and Yeah. visible as well, ma'am. Okay. Okay. I was talking about your systems and hormones. So for arresting that hormone at the right time, I hope you do that and save yourself from anemia comes to the uterus and waits to get fertilized and in the body. Now, if the egg doesn't come, unless there is an egg, a sperm cannot fertilize it. So, pregnancy में problems आ सकते हैं. Pregnancy में problem इस वजह से भी आ सकते हैं if at all आपका जो वजाइना एरिया है वो क्लीन और इन्फेक्शन फ्री न हुआ तो in order to आपका मैरिड लाइफ सेक्सिंग रहना इन्फेक्शन फ्री रहना is very very important. So by all means आपको uh, uh, particularly उस जगह का change a pad every 6 hours so you don't fall prey to various infections. Now can somebody tell me what is the next question? Okay, I can see chat box. Which is better to use, pads or tampons or cups? Well, you can use anything. You can use a menstrual cup also. Like if you're using tampons, be very sure not to forget that, so that you don't end up getting a menstrual toxic shock. If you're using menstrual cup, make sure you empty it. Pads वो शरीर के बाहर होता है, so I always champion pads, and pads is an age-old तरीका. हमारा तो मतलब एक सस्टेनेबल मेंस्ट्रुएशन का पार्ट रहा है. जब cotton cloth available था, we were youngsters, we don't get cotton, so that's why we have replaced it with a disposable pad. Is it safe to use sanitary pads at the same time during heavy flow? Yes, why not? Definitely can use a sanitary pad. Ma'am, what was the difficulty you had faced during Sakhi project? Difficulties, देखो, when you are working on a difficult topic, roses, मेरे मतलब पाथ में कोई फूल बिछाएगा ये मुझे लगा ही नहीं था. कांटों पे चलना है ये मालूम था. So हमें लाठी भी दिखाई गई है, गांव से भगाया भी गया है, सरकार से बहुत सारी जगह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी किए गए हैं. But then if you believe in your cause, you find a way out. आपको साथ भी मिल जाता है और सही समय पे जिन लोगों का मत परिवर्तन होना है वो भी हो जाता है. बस आपको वहां डटे रहना चाहिए. That is the trick. They say drinking alcohol like beer is helping menstruation, helping you bleed more. Is it safe for our blood during PMS? Uh, Let me tell you why PMS happens.
PMS इसलिए होता है क्योंकि when the egg gets broken inside your body, egg जब uterus में आता है तो it waits there for 48 hours to get fertilized. उसके बाद वो फूट जाता है and it starts a journey towards outside of the body. अब ये प्रक्रिया होती है फॉर यूट्रस, ये बहुत दिल तोड़ने वाली प्रक्रिया होती है. सो इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग, मतलब ईस्ट्रोजन पूरा बंद हो जाता है सिक्रीट होना. जब ईस्ट्रोजन का सप्लाई बंद हो जाता है तो आपका हैप्पीनेस हॉर्मोन्स पूरे बंद हो जाते हैं. एंड जब हैप्पीनेस हार्मोन ही नहीं है शरीर में तो डेफिनेटली यू फील सिक, यू फील क्राइंग, I mean you feel everything problematic. मतलब आप बिल्कुल, जिसको दुखी कहते हैं, आप दुखी बन जाते हो. The reason is absence of happiness hormone. So what you should be doing is increasing your happiness. Now you have to decide whether drinking beer makes you happy. Well, कोई लोग होते हैं जिनको कुछ कविता कहना उससे हैप्पीनेस मिलता है, कोई चित्र उतारना उससे हैप्पीनेस मिलता है, या इस चीज से भी हैप्पीनेस मिलता है, अले या कुछ ऐसी चीज करें. आपको भी हैप्पीनेस लगता है तो मुझे मालूम नहीं, बट देन जनरली से अल्कोहल इज नॉट डेफिनेटली थोड़ी बॉडी. सो दूर रह सको तो रह लो, अगर उसी से आपको अच्छा लगता है तो आपकी मर्जी. एनी आई डोंट थिंक, नहीं है क्वेश्चंस. और व्हाट इज द रीजन फॉर लेस ब्लीडिंग इन पीरियड्स? अगर आपके शरीर में कम ब्लीडिंग हुआ है, कम ब्लड आया है, तो आपके यूट्रस में जमा है. यू नो, यू डोंट ब्लीड फ्रॉम एनीवेयर एल्स. या पीरियड को शुरू रखना है करके बॉडी डजंट सेंड मोर ब्लड टू द यूट्रस. इट इज नॉर्मल इफ यू ब्लीड ओनली फॉर 2 days एंड जस्ट 2 pads, 2 ही पैड्स खराब हो तो भी सही है. आई मीन इट्स रॉन्ग. The body in future in pregnancy, yeah, I said it does. अगर कोई और क्वेश्चन हो किसी को तो, और जैसे मैंने बताया डॉक्टर की सलाह जरूरी है. अगर 20 या 45 डेज के बीच में आपका पीरियड ना आए तो कुछ गुड प्रैक्टिसेस है जो आप अपने आप को डाल सकते हो, जैसे मार्क ऑन कैलेंडर एवरी मंथ और अपने पीरियड्स का पैटर्न देख लो. क्या आप 30 दिन में होते हो, क्या आपका पीरियड 28 दिन में आता है, 25 दिन में आता है. यू शुड फाइंड अ पैटर्न. हर महीने ये उसके बाद एक दिन आप 25 दिन में हो सकते हो, बट देन इट शुड कंटिन्यू फॉर 6 months. ऐसे ही हो कि 2 महीने 38 दिन, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है. इसलिए पीरियड के बारे में उदासीन कभी मत रहना. बी वेरी मच अलर्ट एंड अवेयर, ऑलवेज लिसन टू द सिग्नल्स गिवन बाय योर बॉडी. और याद रखें कि इतना ही नॉर्मल है जितना आपका खाना, पानी पीना, अपने फूड को पचाना, या कहीं पे कटे हो तो ब्लड निकल आना, उसके ऊपर आपने पट्टी करना. इट्स यू नो, इट्स एज नॉर्मल एज दैट. सो हैव हैप्पी पीरियड्स. मैं एक गाना आप सबको सुनाना चाहूंगी, इफ यू डोंट माइंड. कैन आई? Yeah, ma'am, you can, ma'am. आपको You ये can. चीजें सिखाते हैं, छोटी हो या बड़ी हो. इट इज ऑलवेज यू नो अ हैप्पी थिंग टू सिंग अ सॉन्ग. तो वी टीच द गर्ल्स. आई वुड बी हैप्पी, आप जहाँ पे भी हो आप भी मेरे साथ साथ गा लो. आज से इस्तेमाल मैंने सखी कर लिया, अब माहवारी के डर से मैंने ब्रेकअप कर लिया, सुबह सवेरे उठ के मैंने ये सब कर लिया, अब माहवारी के डर से मैंने ब्रेकअप कर लिया, स्कूल और पढ़ाई मैंने सब कुछ कर लिया,
पूरा महीना स्कूल मैंने कैचअप कर लिया, दिल के अरमानों को मैंने वेकअप कर लिया, खुले आसमानों में उड़ना स्टार्ट कर लिया, अब माहवारी के डर से मैंने ब्रेकअप कर लिया। फ्रेंड्स के साथ ये बात शेयर भी करो, और उनके साथ जो नहीं मिले उनको व्हाट्सएप करो, लेकिन आज के बाद ऑल ऑफ यू शुड बी सेइंग माहवारी के डर से मैंने ब्रेकअप कर लिया। थैंक यू। Very nice, ma'am. Very nice. Thank you very much, ma'am. Now I would like to request Coordinator of Business Management Department, Ms. Amreen Janamada, to deliver the vote of thanks. Good afternoon to everyone. Good afternoon to everyone present for the virtual webinar as well as watching us live on YouTube. Honorable President Dr. Mahesh Patil, Principal Dr. Neeta Patil, our most valued invited guests, ladies, it's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. I, on behalf of Sahyog College of Management Studies, Thane, and the organizing team of WDC, extend a very hearty vote of thanks to our today's speaker, Mrs. Swati Bedekar, ma'am, for gracing your important work and sharing with us your insights on business management and providing inspiring stories of success and inspiring stories of success that inspire us all to achieve greater heights. I must I must mention our deep sense of appreciation. I must mention our deep sense of appreciation for Mrs. Swati Bedekar. Her explanation of today's topic and empowering us was very fruitful. It is the process of women to redefine gender roles that allows them to acquire the ability to choose between the known alternatives whom have otherwise been restricted from such an ability. The speaker said both men and women should engage in a discussion about puberty and menstrual cycles. It is important to educate youngsters not just about the menstrual cycle, but also about sex, sexuality, sexual pleasures, and the importance of consent. I would extend my thanks to our President Dr. Mahesh Patil and our Principal Dr. Neeta Patil for motivating and inspiring us for conducting such kind of awareness events at our college. I would like to thank our coordinator for WDC, Dr. Rupali Jadhav, and our team for working effortlessly for days and nights for making this event successful. I would also extend my gratitude to all the boys of business management who have taken equal efforts for making this event successful. I would thank to all the invitees and parents who have attended today's webinar, and I am sure you all have benefited by the today's session. I would request everyone not to leave the WhatsApp groups as we will be conducting more such events for girls and ladies. If you all want webinars on any of the topic, feel free to message us in groups or personal chats so that we can conduct session for you on your given topic. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Swati ma'am. Thank you so much. Hello. Participant, you can leave the meeting. We have put the feedback form in WhatsApp group as well. You can fill that form over there also. Thank you very much. Thank you very much, everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.